Hello students, welcome to our English class. Students, in our today's English class, we are going to start our chapter number 11, which name is Then and Now. In this entire chapter, we are going to see about the comparison between the modern world and the world before 30 years. Okay, how technology developed within this 30 years. Okay, mobile phone existed right now, but before 30 years there was no sign of mobile phones. So in this chapter we are going to see the world then and the world now. Okay, so come with me and let's see the chapter. Let us explore. Did you know that mobile phones were not around just 30 years ago? As I already told you that mobile phones didn't existed 30 years before. Okay, things we use today were not common at all 30 years ago. हम जो भी चीजें आज यूज करते हैं 30 years पहले ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं थी. ठीक है. Similarly, many things that were used back then are not common now. ठीक है. बिल्कुल उसी तरीके से जो चीजें उस टाइम यूज की जाती थी आज वो कॉमन बिल्कुल भी नहीं है. Talk to your parents and grandparents to make a list of things that have changed over the past 30 years. So who is going to tell you the difference between now and 30 years before? Okay, your parents and grandparents. So talk to your parents and grandparents and try to find out the difference between then and now. Okay, let us read. Sneha's dadosa is a retired army officer. One day, when Sneha was going through her dadosa's old trunk, she found an old letter. So, Sneha के dadosa means grandfather. ठीक है, तो स्नेहा के जो दादोसा हैं वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है. सो एक दिन स्नेहा जब अपने दादोसा के ओल्ड ट्रंक मीन्स उनके ओल्ड बैग को खोल रही थी तो उसमें स्नेहा को एक पुराना लेटर मिलता है. ठीक है. He remembered the old times when she took the letter to Dadosa. He remembered the old times when her Dadisa used to write him letters. So स्नेहा वो लेटर लेके अपने दादोसा के पास जाती है. ठीक है. सो दादोसा जब उस लेटर को देखते हैं तो वो अपने ओल्ड टाइम को याद करते हैं. उन्हें याद आता है कैसे उनकी वाइफ यानी स्नेहा की दादीसा उनको लेटर लिखती थी. With the permission of her dadosa, she read the letter. Okay, so after taking the permission from her dadosa, Sneha starts reading the letter. In the letter, दादीसा complained about the naughty behavior of her पिताजी. उस लेटर में जो दादीसा हैं स्नेहा की उन्होंने स्नेहा के फादर की क्या की है कंप्लेन की है. ठीक है. सो द लेटर रीड एज फॉलो. सो वो लेटर कैसे लिखा गया है देखिए. खम्मागणी, वी होप यू आर वेल, थिंग्स आर फाइन हेयर. सो स्नेहा की दादी सा क्या कह रही हैं तो सबसे पहले खम्मागणी. ठीक है. और वो कहती हैं कि मैं ठीक हूं और आई होप आप भी ठीक होंगे. सिंस यू लेफ्ट इन जून महावीर हैज बिकम वेरी नॉटी. इट इज हार्ड टू सेंड हिम टू स्कूल नाउअडेज. ओके, सो महावीर स्नेहा के फादर का नाम है. ठीक है. सो दादी सा कहती हैं कि जब से आप जून में गए हैं ठीक है महावीर बहुत ज्यादा नॉटी हो गया है यानी बहुत ज्यादा वो बदमाशी कर रहा है. उसको स्कूल भेजना बहुत ज्यादा हार्ड हो चुका है मेरे लिए अब. एवरी डे ही कंप्लेन्स ऑफ अ स्टमक एक इन द मॉर्निंग. ही गेट्स अप आफ्टर ही स्मेल्स द churma. Okay, so in the morning, okay, every day in the morning time he started complaining that I'm suffering from stomach ache, so I don't want to go to school. Okay, लेकिन जैसे ही चूरमे की स्मेल आती है उसका पेट दर्द गायब हो जाता है. We have caught his trick and sent him to school anyway. अब हम लोगों ने उसके ट्रिक को पकड़ लिया है और हम उसे किसी भी तरीके से स्कूल भेज देते हैं. Last week his teacher complained that he was not doing his homework, and last week I received a complaint from his teacher that Mahavir was not doing his homework properly. We checked and found that he keeps comic book between his study books and read the comic book instead of doing the homework. ठीक है. तो जब हमने उसके होमवर्क्स को चेक किया तो हमें क्या मिलता है कि महावीर होमवर्क नहीं कर रहा है बल्कि कॉमिक्स पढ़ रहा है. ठीक है. वो क्या करता है अपने बुक्स के बीच में कॉमिक बुक को रख के कॉमिक्स पढ़ता है. Now, Sunita sits with him every day to make sure that he completes his homework. Okay, so Sunita कौन है? महावीर की sister. Okay, so Sunita हर दिन उसके साथ बैठती है, महावीर का homework complete कराती है. Sunita has been very helpful with her brother. She gets up on time in the morning and gets ready for school without any drama. ठीक है. तो सुनीता मेरी बहुत हेल्प करती है, अपने भाई की भी बहुत ज्यादा वो हेल्प करती है. ठीक है. वो मॉर्निंग में ही उठ जाती है और वो अपने भाई को
रेडी करती है स्कूल जाने के लिए और सुनीता भी बिना किसी ड्रामा के स्कूल चली जाती है. She also got second rank in the essay writing competition at school. और सुनीता got second rank, okay, in the essay writing competition organized by her school. Both children are well and they have asked you to bring a good cricket bat when you come back from Kashmir. ठीक है, तो दोनों बच्चे बहुत अच्छे से हैं और उन्होंने क्रिकेट बैट की डिमांड की है जब आप कश्मीर से वापस आओगे. प्लीज राइट बैक टेलिंग अस अबाउट व्हेन यू विल कम. सो आप हमें बताइए आप कब रिटर्न आ रहे हैं. योर अफेक्शनेटली रमकू देवी. सो स्नेहा के दादी जी का नाम क्या है? रमकू देवी. ठीक है, सो रमकू देवी कहती हैं, मतलब रमकू देवी जी ने ये लेटर लिखा है. किसको लिखा है? स्नेहा के दादा साहब को. स्नेहा थॉट इट मस्ट बी सो मच फन टू रिसीव सच लेटर्स. She started thinking about how we talk on mobile phones and messages nowadays. So स्नेहा को यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा मजेदार एक्टिविटी मिलती है करने के लिए. वो ये सोचती है कि पहले के टाइम पे जो मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, पीपल यूज टू राइट लेटर, ओके, और अब हम क्या करते हैं, हमें किसी से बात करनी है, वी जस्ट टेक्स्ट देम. हम क्या करते हैं, सीधा फोन में टाइप करके उन्हें मैसेज भेज देते हैं. तो क्या डिफरेंस है लेटर और मोबाइल फोन में? मैसेज दोनों से जा रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? स्नेहा ये चीज सोचना शुरू करती है. ओके, सो हियर आवर चैप्टर एंड्स. सो लेट्स फाइंड आउट सम वर्ड मीनिंग्स. सो एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? एक्सप्लोर का मतलब होता है व्हेनेवर यू वांट टू नो मोर अबाउट समथिंग. ओके, कॉमन का मतलब होता है आम. ओके, देन सिमिलरली मीन्स एक जैसा, बिल्कुल. ठीक है, रिटायर्ड मीन्स व्हेनेवर यू रिटायर फ्रॉम योर वर्क. ठीक है, आर्मी ऑफिसर कौन होते हैं? द पीपल हु यूज्ड टू सर्व इन आवर आर्मी. ओके, दैट पर्सन आर कॉल्ड एज आर्मी ऑफिसर्स. नाउ ट्रंक का मतलब क्या होता है? अ बॉक्स. ओके, लेटर मीन्स, इसको हिंदी में पत्र बोला जाता है. ठीक है, इट इज अ कम्युनिकेशन मेथड इन विच वी यूज आवर हैंड्स. ओके, नाउ रिमेंबर्ड का मतलब क्या होता है? यू आर रिमेम्बरिंग समवन. ओके, परमिशन मीन्स यू आर सीकिंग परमिशन का मतलब होता है आप किसी से कोई काम करने के लिए क्या करते हो? उनकी परमिशन लेते हो. ठीक है, कंप्लेंट का मतलब होता है शिकायत करना. ठीक है, नॉटी मीन्स शरारती, मीन्स अ नॉटी चाइल्ड. देन बिहेवियर का मतलब क्या होता है? हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार कैसा है किसी के लिए. ठीक है, पिताजी मीन्स योर फादर. देन खम्मागणी इट इज अ राजस्थानी वर्ड. ठीक है, जैसे हम हिंदी में नमस्कार कहते हैं तो खम्मागणी राजस्थानी लैंग्वेज में कहा जाता है. ठीक है, सो लेट्स लर्न न्यू वर्ड. ओके, स्टमक पेन when a ache started in our stomach. Okay, so it is called as stomach pain. So sentence में आप कैसे यूज करेंगे? After eating too much pizza, I had a terrible stomach pain. Then complaint का मतलब है जब भी आप satisfied नहीं होते हो, you are expressing your dissatisfaction towards someone. Okay, so that condition is called as you are complaining. Okay, so sentence में आप कैसे यूज करेंगे? The customer complained to the manager about the slow service. And the last one, affectionately. इसका क्या मतलब है? सी, इन अ वे दैट शोज लव और फॉन्डनेस. ठीक है, सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे? ही स्माइल्ड अफेक्शनेटली एट हिज ग्रैंडडॉटर एज शी रन टुवर्ड्स हिम. ओके, अब एक्सरसाइज देख लेते हैं. तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जैसे कि व्हाई डिड महावीर प्रिटेंड टू हैव अ स्टमक एक? क्यों महावीर ने प्रिटेंड किया था कि उसको पेट में दर्द है? ही हेटेड स्कूल, ही वांटेड टू अवॉइड स्कूल, ही लव्ड चूरमा, ही वाज हैविंग अ स्टमक एक. सो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है. देन सेकंड, how was Sunita different from her brother? She was responsible and helpful. She reads comics. She complained about homework. She gets up late. Okay, so option number A is correct. Then, what did Mahavir and Sunita ask their father to bring from Kashmir? Sweets, a cricket bat, books, shawl. Option number B is correct. Okay. So students, this is all about our chapter. Read this chapter very well and complete all the exercises. Now I'm taking leave. I'm going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.